سب سے پہلے سیاسی صورتحال کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ سیاسی صورتحال میں تھوڑی سی ہلچل سی ہوئی ہے جب بانی پی ٹی آئی نے ایک خط لکھا ہے اور خط بھی انہوں نے آرمی چیف کو لکھ دیا. اس میں 5-6 نکات ہیں اپنے اوپر جو وہ سمجھتے ہیں کہ ناانصافیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں تو وہ بند کی جائے, پالیسی چینج کی جائے. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ حکومت سے بات چیت کر کے معاملات حل نکالیں گے یا پھر وہ آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ اب ذرا خط مطلب یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے رائٹ, سو دس پرابلی شوڈ ہیو کم ا لٹل فردر, بٹ آئی تھنک کہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ معاملات گورنمنٹ کے ساتھ خود ہی سالو ہوں, ریزالو ہوں, بٹ وہ ریزالو نہیں ہوئے, وہ ڈیڈ لاک پہ آئے. تنقید بھی کی جا رہی ہے اس خط پر. اچھا, فیصل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قانونی معاملات پاکستان تحریک انصاف کے دیکھتے ہیں. فیصل چودھری زیادہ تر رہنما بھی ہم ان کو کہتے ہیں کیونکہ نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہوتی ہے یا پھر اس سے متعلق جو بات ان کی حکمت عملی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں. فیصل صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے آغاز تو اس خط سے ہی کر لیتے ہیں. ایک طرف آپ مذاکرات حکومت سے کر رہے ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا اور اس میں 6 نکات جو ان کے خلاف ان کے مطابق معاملات چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پالیسی چینج اور آپ نے ہی بتایا اس کی وضاحت ڈیٹیل بھی آپ نے دی, تو یہیں سے ذرا گفتگو کا آغاز کیجئے. سب سے پہلے آج تمام پاکستانیوں کشمیریوں کے ساتھ ہم سیاسی سفارتی اور سیاسی طور پہ سولیڈریٹی کا اظہار کرتے ہیں. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ ان کی جدوجہد میں کھڑے ہیں اور کشمیری جو ہیں پاکستان کی شہرگ ہے اور ہم پاکستانی جو ہیں کشمیر کو اپنا حصہ مانتے ہیں اور انشاءاللہ اس جدوجہد میں ان کے ساتھ رہیں گے. Now coming to your question pertaining to the letter which has been addressed to the Army Chief by عمران خان صاحب, دیکھیے یہ لیٹر جو ہے یہ ان 6 وجوہات کی طرف اشارہ ہے جس کے بنا پہ عمران خان صاحب بینگ اے فارمر پرائم منسٹر نے نشاندہی کی ہے. پاکستان کو درپیش وہ چیلنجز کا احاطہ کرتے ہیں جس پہ ان کا خیال ہے کہ ہماری فوج بہت قربانیاں دے رہی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. ہمارے افسر ہمارے جوان وہ شہید ہو رہے ہیں اور ہمیشہ جو فوج لڑتی ہے اس کے پیچھے ایک فوج عوام ہوتی ہے اور اسی عوام کے سر کے اوپر فوج جو ہے لڑائی جیتتی ہے. اور یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم ایک متفقہ متحد ہو کے اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ وہ ان جو سرحد پار سے آنے والے خطرات ہیں, سرحد کے اندر سے جو خطرات لاحق ہیں ان کے ساتھ نبرد آزما سکیں. تو اس میں 6 ان نکات کا احاطہ کیا گیا ہے جس سے عمران خان صاحب کی نظر میں عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج بڑی ہے ان کو کم کرنے کے لیے ان پالیسیز پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں الیکشن ریگنگ ہے, 26ویں ترمیم ہے, اس میں پیکا لا ہے, اس میں معاشی عدم استحکام ہے, اس میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے, اس میں پی ٹی آئی کو جو نشانہ بنایا گیا ہے ریاستی جبر کا اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو احاطہ کرتی ہیں ان لوازمات کا, ان بنیادی وجوہات کا جس کی وجہ سے یہ خلیج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکے. جی فیصل صاحب یہ بھی بتائیے, سیکیورٹی کے ذرائع کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہمیں تو بانی سے کوئی خط ہی نہیں ملا اور یہ بھی کہنا تھا ان کا کہ انہیں ایسے کسی خط پڑھنے میں دلچسپی بھی نہیں ہے. تو آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے, یہ کس کو خط دیا گیا تھا؟ دیکھیے یہ اوپن لیٹر ہے, یہ پتا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. آپ ہر ٹویٹ کا ایک لفظ پڑھتے ہیں, ہر ٹویٹ کے اوپر غور و غوض کرتے ہیں اور پھر گلے بھی پہنچاتے ہیں کہ وہ ٹویٹ سخت تھی اور وہ نرم تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خط آپ تک نہ پہنچا؟ خط پاکستان کے طول و عرض میں دنیا کے ہر ایک شخص کی نالج میں ہے. اوپن لیٹر ہے, سیکرٹ لیٹر نہیں ہے. یہ اداروں نے پڑھ لیا ہے اور اسی بنا کے اوپر ذرائع کے ذریعے یہ خبر چلائی گئی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی ذرائع جو ہیں وہ ایک مفروضہ ہی ہوگا کیونکہ سیکورٹی ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ذرائع کے ذریعے خبر چلائیں. بہرحال یہ لیٹر جو ہے ان تک پہنچ چکا ہے.
जिस लेटर का वो जिक्र कर रहे हैं कि कोई पर्चा जो है उनके तक पहुंचेगा, ये एक्स पोस्ट का ज़माना है, डिजिटल लेटर्स होते हैं, डिजिटल लेटर हैज़ बिन रिटन, एक्स पे उनके अकाउंट पे भी पोस्ट हो चुका है इमरान खान साहब के, इट हैज़ बिन रीच, और ये वो निशानदेही है, उसमें जवाब देना ना देना सवाबदीद इदारों की है। जो निशानदेही इमरान खान साहब ने की है, आज भी अखबारात ने उन पर एडिटोरियल इदारिये भी लिखे हैं और उन पे ये कहा है कि ये जो नुकात उठाए गए हैं इनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, और ये वो नुकात हैं जिनकी बिना के ऊपर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अवाम को एक पेज पे आना पड़ेगा ताकि हम आगे निकल तो सकें। बेसिकली ये खलीज है जी ये जो खलीज है आपने पैदा की ना, ये जो जिस खलीज की आप बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनके नाम लेकर उनके बारे में बात करके कि यही इन्वॉल्व है, इन्होंने हुकूमत गिराई है, और यानी एक मैसेज आपने पहुंचा दिया उनको, तो इसका मतलब ये कि बस बहुत रगड़ा हमने खा लिया, अब आप उनके ऊपर से हाथ हटाएं, हमारे ऊपर हाथ रखें आप, और बस बहुत हो गया, हम आपके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। ऐसा ही है ना, यही सूरत हाल है ना? सबसे पहली बात यह है कि मैं आपके इस इल्ज़ाम की बिल्कुल नफ़ी करता हूँ, और बल्कि ये आपने कहा कि ये खलीज आपने पैदा की, तो आपको ये याद होना चाहिए ये खलीज 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन रिग करके जब माइनॉरिटी हुकूमत को मेजॉरिटी के ऊपर लगाया गया, अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया, इलेक्शन फ्रॉड किया गया, और उसके बदले में जो है एक ऐसी दो जमातों को के साथ मिल के हुकूमत कायम करवाई गई जिनके ऊपर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात हैं। अवामी नफरत जो है वो आपके सामने थी। जो 9 फरवरी था, 9 मई था, 8 फरवरी को लोगों ने रिजेक्ट किया, PTI को मुंतखब किया। जब आप अवाम की मुंतखब हुकूमत को मौका नहीं देंगे और अपनी मर्जी से लोगों को लगाएंगे तो उसका फिर शाखसाना यही होता है, उसका रिजल्ट यही होता है। जैसे मैंने कहा है कि आपने शायद लेटर की मंदरजात को गौर से नहीं पढ़ा है, हमने इसमें वो वजूहात का जिक्र किया है, ना किसी से कोई रायत मांगी गई है, ना किसी से कोई डील और डील की बात की गई है। ये उन वजूहात की तरफ एक इशारा है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज एक मुश्किल हालात में है, सियासी जमूत का, सियासी अदम नहीं तो वो क्या करेंगे इन वजूहात में, वो क्या करेंगे इन वजूहात में? आर्मी चीफ क्या कर लेंगे इन वजूहात को, कैसे हल कर इन वजूहात के क्रिएटर हैं, ये वजूहात के क्रिएटर हैं। अच्छा, वो इन पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का फुटप्रिंट है। अगर आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी खिलाड़ी है, और एस्टैब्लिशमेंट के बगैर ये हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती। ये हुकूमत जो है ये एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के बैठी हुई है, और पाकिस्तान के में जो सियासी किरदार है फ़ौज का, बिल्कुल मैं उसकी नफ़ी उसको अप्रूव नहीं करता, लेकिन सियासी रियलिटी ये है, हकीकत ये है मेरे भाई कि जो फ़ौज है उसका एक सियासी किरदार है पाकिस्तान में, और उस किरदार को महदूद करने के लिए फ़ौज को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सियासी जमातें अपना सियासी स्पेस खो चुकी हैं। ये उस दिन ही इन्होंने अपनी सियासी स्पेस खो दी जब इन्होंने लोगों के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया और फॉर्म 47 की हुकूमत की बुनियाद पे पावर में आने का फैसला किया। तो ये दोनों सियासी जमातें जो इस वक्त लीड कर रही हैं हुकूमत को, बल्कि वो एक बोझ बन चुकी हैं मुल्क पे भी और इस्टेब्लिशमेंट पे अपनी नाअहली और नाराकी की वजह से, और लोगों की सख्त नापसंदीदगी और नफरत का शिकार है इस वक्त। राइट। चौधरी साहब ये भी बताइएगा, राना सनाउल्लाह ने बानी के ख़त के हवाले से ये सवालात उठाए हैं कि इन खतूत के पीछे कौन सी लॉबीज काम कर रही हैं और ये ख़त कौन लिखता है, तो क्या कहेंगे, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं राना वो कह रहे हैं कि एक्सेस कैसे है जेल में, इस तरह बानी PTI को इससे पहले भी बहुत सी बातें होती रही, तो आराम से वो लिखते हैं, हालांकि खुद हुकूमत में उन सवाल उनसे होना चाहिए। एक्चुअली तो उन्हीं से होना चाहिए। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून के मुताबिक लेटर लिखने पे पाबंदी नहीं है। अगर जेल मैनुअल पढ़ा हो राना साहब ने, और राना साहब वकील भी हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अरसे से शायद नहीं की है, एक तो लेटर लिखने पे पाबंदी कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जो ये लॉबीज है वो पाकिस्तानी अवाम है। एक ही लॉबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लोग हैं। इसके अलावा कोई लॉबी नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने शायद ख़त के मंदरजात पढ़े बगैर तबसरा कर दिया है, और वो तबसरा वो अक्सर करते रहते हैं बगैर पढ़े। नून लीग वाले जो ज़्यादा इसके बेनिफिशरी हैं, जो मौजूदा अदम इस्तेहकाम है
मुल्क में वो जो बहरान है इसके बेनिफिशरीज जो हैं वो बुनियादी तौर पे फौरी तौर पे घबरा जाते हैं कि शायद टेम्परेचर नीचे आ जाए, ताल्लुकात मामूल पे ना आ जाएं, क्योंकि अगर वो ऐसी चीज़ होती है तो डेफिनेटली उसका पहला जो शिकार होंगे वो खुद होंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो आम के वोटों से नहीं आए हैं, वो किसी के कंधे पर चढ़ के अपना कद ऊंचा किए बैठे हैं और वो नीचे से जब निकलेगा वो धड़ाम से गिर जाएंगे। लिहाजा वो कोशिश करते हैं कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो कायम रहे, टेम्परेचर हाई रहे, ताकि उनकी जो नौकरियां ये इक़्तिदार तो फिर फैसल साहब इस सूरत हाल में फिर मुज़ाकरात का क्या बना? हम ये कह सकते हैं कि खत्म मुज़ाकरात हो गए हुकूमत से, वो तो बात पीछे रह गई है ना? देखिए, मुज़ाकरात की तो हुकूमत जब डिलीवरी नहीं कर सकी है, यही तो बात है जो हमें कहा गया सियासी कुव्वतों को आप शामिल करें। हम इनको सियासी कुव्वत नहीं समझते क्योंकि इन्होंने अपनी जो सियासी अमल किरदार अदा नहीं किया है। इनका जो किरदार था, पीपल्स पार्टी भी इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है और नून लीग तो खैर पैदा ही अमरीत के गमले में हुई है। 8 फरवरी 2024 वो दिन था जब आप जमहूरी क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश करते, आप अवाम के मैंडेट को तस्लीम करते। उस दिन तस्लीम ना करके दोनों जमातों ने अपनी सियासी हैसियत खो दी है और उन्होंने जो एक मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग तो हो नहीं सकी इनसे। तो ये बताइए फिर आप ये कहते हैं कि जेल के दरवाजे भी नहीं खुला सके। 2 दफ़ा जो मुलाकात हुई तो वो जनरल डायर यानी मोहसिन नकवी ने कराई, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम इनके साथ बैठे क्योंकि हम पे ये तनकीद की जा रही थी कि आप सियासी कुव्वतों को इन्वॉल्व नहीं करते। तो हमने सियासी कुव्वतों को इन्वॉल्व करके आपके सामने रख दिया कि जो सियासी कुव्वतें इतनी बाख्तियार हैं। और जो कल मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो जनरल डायर ने ये बयान दिया है 26 नवंबर रिपीट करने का, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। मोहसिन नकवी साहब इस सियासी बहरान के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं और जिस तरह की बयान और जिस तरह की ज़बान वो पाकिस्तानी शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंतहाई काबिल मजम्मत भी है। और ये काफ़ी मैं समझता हूँ कि आई एम अफ्रेड कि इस किस्म अच्छा, वैसे पता है तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि वो रास्ता, वो दरवाजा नहीं खुलना आपका, वो जब तक 9 मई से मुताल्लिक आपका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ जाता या फिर कोई पशेबानी, कोई माफ़ी नहीं हो जाती, नहीं तो तब तक रास्ता नहीं खुलना आपका। देखिए 9 मई में हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हम 9 मई को फॉल्स फ्लैग और पॉलिटिकली मोटिवेटेड समझते हैं। हम समझते हैं कि वहाँ पे PTI को छोड़ के जाने वालों को जो है वो दरगुजर कर दिया गया, जिन्होंने PTI के साथ रहे उनको 9 मई के केसेस में मुलव्वस किया गया है। 9 मई में पॉलिटिकली पिक एंड चूज किया गया है, लोगों को जो है छोड़ा गया है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसलिए हम जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते हैं कि न्यूट्रल अंपायर आए और 26 नवंबर 2024 और 9 मई 2022 की वो तहकीकात करें और देखें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा का ऑर्डर दिया, CCTV फुटेज चुराई, आग लगाई और 10,000 PTI के जो लोग हैं 4 मुकामात से उनको टारगेट किया गया। उन लोगों को भी टारगेट किया गया जो कि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, दूर दराज इलाकों से हमारे कारकुनान को उठाया गया। अच्छा फैसल साहब ये भी बताइए, अभी तक भी साबित नहीं हो सका था। अच्छा, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त PTI के पास ऑप्शन मज़ामती सियासत के अलावा कोई और ऑप्शन है? वो एहतजाज करके भी देख लिया, हुकूमत से बात करके भी देख लिया, लेटर भी दे के देख लिया, अब क्या वापस सड़कों पे आएगी तो ही कुछ रिजॉल्व की तरफ जा सकती है? ट्रम्प की जो एक हैंड ऑफ वो था वो भी खत्म हो गया, तो अब ऑप्शन रहे क्या है PTI? व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान? देखिए ये जो ऑप्शंस आपने गिनवाए हैं ये सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है रात गए जिसको इग्नोर कर दिया गया है और आपने भी जिक्र शायद नहीं किया उसका। वो है कि तमाम अपोजिशन ने कल पहली दफ़ा असद कैसर साहब के घर पे बैठ के मुल्क की मसाइल को जो हैं उनका चैलेंजेस का जायज़ा लिया है और उसमें फौरी तौर पे हुकूमत को मुस्तफ़ी होकर साफ शफाफ इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया गया है। ये वो ग्रैंड नेशनल अलायंस है जिसके ऊपर PTI का, लेकिन इससे पहले हो चुका ना, ताफ़ुज़े आइन वगैरह भी हो चुका वो अचकज़ई, लेकिन ये कि ये कितना फ्रूटफुल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप ये लेकिन सही कह रहे हैं कि बिल्कुल। अच्छा, अदालती मामलात में थोड़ी बात ये जब होगा तो आपको नजर आएगा। इस वक्त PTI जब सड़कों पे होगी तो शायद अकेली नहीं होगी, PTI के साथ पूरा पाकिस्तान होगा, अपोजिशन जमातें होंगी और लॉयर्स होंगी और सबसे बढ़ के आपकी आज़ादी के लिए भी हम ही काम कर रहे हैं। पीका के खिलाफ आवाज़ इमरान खान ने उठाई है,
ज़रा आप लोग तो उठा नहीं सकते क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया गैग है और इंटरनेट के ऊपर असॉल्ट किया गया है। किसी भी दौर में नहीं उठा सके हम तो। स्टेटस सही बात है, वैसे ही बात। हम किसी भी दौर में नहीं उठा सके क्योंकि जब भी आवाज उठाई जिस भी दौर में, इस पे तो आपको पीटीआई का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना इमरान खान साहब का। सही है, पहले हम नून लीग का कर रहे थे, अब आपका करेंगे आपके दौर में। अच्छा, अदालती मामला की बात करें, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, एक और उन्होंने लेटर लिख दिया, सीनियरिटी से मुतालिक ज़ाहिर है ये मामला चल रहा है, और सीनियरिटी की क्यों बात हो रही है, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट है ज़ाहिर है, और आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से, लेकिन वो कह रहे हैं आर्टिकल 200 के तहत हमने किया भाई, और सदर मुमलिकत ने उनका इख्तियार है बाकायदा, तो इसमें गैर आईनी बात क्या हो गई, इसमें कोई मैलाफाइडी है वो बताएं आप। देखिए मेरे भाई, जो आइन है वो एक एसेंशली सियासी डॉक्यूमेंट है, वो एक सियासत जो है वो कानून की शक्ल में आपके सामने है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इजाज़त है, यानी एमरजेंसी लगाने की, लोगों को बुनियादी हकूक़ मुअत्तल करने की, गवर्नर राज लगाने की, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको कभी भी पॉलिटिकली अप्रूव नहीं किया जाता। इसी तरह से ये जो तबादला किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये टारगेटेड है। इसमें जो हम मुकला जो हैं, कतई नज़र के सियासी वाबस्तगी किस जमात के साथ है, मैं उससे बाला होकर बात कर रहा हूँ। ये अदालती जो निज़ाम है, हमारा निज़ाम अदल है, ये उसके ऊपर एक असॉल्ट है। कौन सा जज है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन जजेस को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए जस्टिस मोहसिन कियानी जो हैं वो हमारे सीनियर प्यून जज इस्लामाबाद के हैं, उनको उनकी सीनियरिटी को इंट्रूड किया गया है, उनकी सीनियरिटी को फ्रस्ट्रेट किया गया है, और किसी भी जज का ये इस्तेकाक होता है कि वो सीनियर प्यून जज है तो वो चीफ जस्टिस बने। अगर कोई जज जो है अपना हक नहीं उनको मिलेगा तो वो दूसरे के हकूक़ की हिफाजत कैसे करेंगे। तो अदलिया बतौर अदारा इस वक्त अंडर असॉल्ट है, और उनको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे रेवेन्यू स्टाफर्स को ट्रीट किया जा रहा है। उसकी सीनियरिटी के ये मामला जो हैं पब्लिक में आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये अदलिया के इदारे के लिए अच्छी बात नहीं है। और अदलिया का वो इदारा वो आपके लिए, मेरे लिए, देखने वालों के लिए या दूसरे इदारों के लिए, सब के लिए वो एक ऐसा इदारा, निज़ाम में एक ऐसा इदारा बनाया गया है जो कि सबकी बात सुनेगा और फैसला देगा। अगर आप उस फैसला साज इदारे को ही असॉल्ट कर देंगे तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। आपने पिछले दिनों में डॉन का वो मशहूर ज़माना कार्टून देखा होगा जिसमें 4 पिलर जो हैं उनमें से तकरीबन 2 गिर चुके हैं, तीसरा वनरेबल है और चौथा नहीं जो है। तो अब एक पिलर के ऊपर तो निज़ाम नहीं चल सकता, वो निज़ाम गिर जाएगा और उसका नुकसान सरीहन मुल्क को होगा। देखिए किसी भी इदारे को नुकसान होता है और ख़ासकर अदलिया जैसे इदारे को नुकसान होता है तो फिर सबका नुकसान होता है। हम लोग इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये जो एडवेंचरिज्म किया गया है अदलिया पे, पहले 26वें आईनी तरमीम के ज़रिए, फिर उसके ज़रिए, ये जो है वो बिल्कुल जो है नाकाबिले कबूल है, और इस चीज़ को जितनी जल्दी समेट लिया जाए वो बेहतर है। पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त अंडर अटैक है। बिल्कुल। फैसल चौधरी साहब, पीटीआई लीडर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपना तज्जिया। सारी सूरत उन्होंने वाज़े कर दी है और अपने तय वाज़े कर दी, उन्होंने जो वो कहना चाह रहे थे मौक़िफ़ उनका, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इश्यूज तो है इस पर।